We'll start. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, प्लीज बी विथ अस थ्रू दिस जर्नी। आप हमारे बीच में आकर के हम सभी को आपके दर्शन, सहवास, प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। लविंग जय बाबा टू ऑल। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। जैसा कि आपने मैसेज में देखा होगा, there is a surprise for all of you. Mr. Farshid Namiranian, one of the author of the book The Boys, हम लोग एक The Boys अद्भुत किताब पढ़ रहे हैं. We are reading this wonderful book The Boys. It is regarding Meherashram and Premashram days. The authors of the book, as you know, are Bob Mossman and Farshid Namiranian. So Farshid Namiranian has great impact throughout his life and his childhood days. He had spent quite a lot of time. He got very good company of Aspandar Vesali. And by Baba's grace and Farshid Namiranian is here in MPR. So we requested him and he has graciously accepted our request to appear on this online meeting. So I'll request Mr. Farshid Namiranian to share uh, stories of Abdullah Pakawan, Asfinda Wesley, whatever time he permits him. And in between, we'll do that after his talk is over. I can summarize it in Hindi or every 5-10 minutes as what will be convenient, Mr. Farshid? You want me to start? Yeah, you start. You'll be speaking in English, but I need to translate it in Hindi also as well. So how we go about it? It occurred to my mind just now. You once your one story is over, then that can be related or narrated in Hindi, or later it can be narrated. So is it okay for all? Jai Baba. Yeah, thank you. So please kindly start, Mr. Farshid Namiranian. He is telling us about Abdullah Pakwan 1929 incident. He is telling that story. Let's start with Avatar Meher Baba ki Jai. Jai Baba. That you have to do from your end, you are host. We can pin up individually on our own. The only problem is I cannot record it. Meher Prasad, I hope you are doing a recording. Jai Baba, Meher Prasad. Today your role is important and you kindly pin up him so that his face appears prominently on the screen. Is that okay, Meher Prasad? So, each one can pin up at their own end. Just click that his pic. There are 3 dots. You do the pin and then his screen will be zoomed for you. Yes, you can start. Jai Baba. Yay, we are going to 1927. Baba had closed the ashram, their ashram and Prem ashram, and sent all the boys home. And then he promised the boys that
when you go, just do my work there, and I'm there with you, and I will come. I will come personally to visit you. So in 1929, Baba with some of the Mandalis, and also Chota Baba, Abdullah Pakran, they traveled to Iran. I think they went first from Bandar Bushehr to Isfahan, and from Isfahan they went to Yazd. And in Yazd, Baba visited all the 14 boys who had come from Yazd, like my uncles, Khosrow and Khodayar. There was Hassan Nizam, I don't remember the name of all of them, but Darvish, another one, Shahpur Mehrdadi, another one, from Khorramshahr, so different villages in Yazd. And he went to the house of all these people, visited them. He went also to the house of his Mandali idol, who had brought those 14 boys originally from Iran to India. And he went to the house of Baidul also. And there are a lot of stories regarding that, but I'm not going to get into that because we want to stick with Chota Baba. In the meantime, Chota Baba is with Baba, and he is with the Mandalis. And what happens eventually after Baba's visit, which included 4 days being in a nice mansion in the city of Yazd from a wealthy Farsi Zoroastrian person. He stayed there for 4 days. The kids went there and visited Baba. But after that 4 days, Baba said, "I'm going to Kerman, and then I will send you the address of where I will be staying." This is what he's telling the boys. And then you can come and visit me. Then Chota Baba here, he tells Baba, "I have been with you for quite a while, and I'd like to stay back in Iran and stay here and make my living here, and not to disturb or bother you anymore." And Baba, with his tears in his eyes, tells Chota Baba that I wanted to take you to the West, and I want you to be with me. But Chota Baba insists that, "No, Baba, I really like to stay back." And Baba tells him, "Okay, if you want to stay back, it's okay, but do one thing, do 3 things actually." He said, "Don't speak, and then don't touch money, and don't have anything to do with women. And if you do that, you will stay safe and you will have your experiences." Because he had experiences of the 6-plane saint. He was a 6-plane saint. He had experiences of the 6-plane consciousness. So he tells Baba, "Okay," and Baba leaves. Baba doesn't stay in Kerman anymore, and he goes, and the telegram comes to the boys that Baba is in India. And they are all heartbroken, but what can they do? I mean, they have to be obedient to Baba's will. So they stay back in Iran, and Chota Baba, this is not what Esfandiar told me personally, that what happened after Baba left. This is what Chota Baba is telling Esfandiar, and Esfandiar related that to me. What happened when Baba left, Chota Baba started a small business. The business was importing water pumps to Iran, and basically he was from Bandar Abbas. So he went to Bandar Abbas, started that business. First, it was a small business. He would import a few water pumps and sell it to the farmers, and that way make some money. And slowly the business picked up. And he was still, silent, nothing to do with women, and didn't touch money. The money was handled by somebody else, and he was keeping silence. And he was happy. He had his experiences and all that. But what happened, the business picks up,
grows, and he now has a bigger place, lots of pumps, telephone call comes, and money starts rolling in and all that. And Chota Baba sees that the money is not handled properly, so he decides, to handle the money himself. Get the money and get the paperwork and account and all that. So that one instruction of Baba was broken right there. Mm-hmm. And then what happens? Business still picks up even more, and he was still silent. And the phone rings, and people are busy; they can't answer the phone. Finally, he has no choice unless answer the phone himself. So he starts picking up the phone, answering the phone, and all that. So still, Chota Baba is telling a stranger that still I have my experiences, even though I had broken the second instruction from Baba. And anyway, it goes on for a while. Then Chota Baba goes home every night and sees that nobody has cooked any food for him. The bed is not made and whatnot. And he hires the maid to come in and cook some food for him, and also clean the house and whatnot. So still everything is okay until he decides that he's going to marry this maid. So once he marries the maid, he said that the darkness, the cloud of darkness is over him now. He said, my experiences went onto the darkness, basically. And I didn't have any more experiences of the sixth plane. I became like an ordinary person, no experiences anymore. And what happens that he told this to a stranger was that a stranger was visiting him, and he saw, he's got a big place, and workers are running from here and there, and Chota Baba is talking and all that, and the stranger tells him, what have you done? I mean, what are you doing? What is this all about? You were a six-plane saint, and you could have helped many, many souls, and what is this? And then Chota Baba tells this story, that this is what happened, basically. And once he married the maid, the cloud of darkness comes, and he said, now I'm an ordinary person. I don't know when, how many lifetimes I have to take, basically, to come back until I get my experiences back. So there are a lot of points. One point was made was that because, assuming your father, this is how I take it in the world, your father is wealthy and he gives you a lot of money and wealth, but he tells you how to protect it. He says, this is the wealth, I'm going to give it to you, this is how you protect it. Do this, do this, do this, and you will keep your wealth. But now the child or the son abuses the wealth, and he doesn't listen to his father. He goes gambles maybe and do that and do that. He loses the whole money. This is how I think the relation with Chota Baba was with Baba, that he disobeyed Baba in keeping his wealth, because Baba brought him to the sixth plane of consciousness. So the father gave him that wealth of knowledge to be on that consciousness. And now he disobeyed, so that's why he lost the whole experience of the sixth plane. And then he will get it back, who knows how many lifetimes. But then, so that was the story that Sandro told me, and it's the points of this story mainly is that when Baba says something and we put it into practice and do that, he will protect us. He will take us from where we are to where we need to be. But if we disobey and don't listen to him, then we shouldn't expect anything.
because whatever happens to us, then it's our fault. It's not his fault. And Wonderful. that's, that is kind of said about Chota Baba, which is unfortunate. Well, I'm going to stop here. If you want to translate it, go ahead. Yeah. I will narrate it. Wonderful, very important. Many questions always in the minds of the people. This narration has answered. Still, there will be some questions. I have to translate in Hindi. Yeah, Jai Baba. आप लोगों को याद होगा, ये हमने किताब में पढ़ा था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कई बातें किताब में नहीं होती है, तो उसके बाहर का जो है कि छोटा बाबा अब्दुल्ला पकरवान को जो छठी भूमिका का अनुभव बाबा ने दिया था, उसका आगे क्या हुआ। जैसे कि पिछले बार हमने रीडिंग के किताब में पढ़ा था कि उनसे पूछा गया कि क्या अनुभव रहा आपको, अभी भी अनुभव आते हैं क्या। जैसे इरविन लक ने उन्होंने 1975 में पूछा था इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा था कि आई डोंट गेट एनी मोर एक्सपीरियंसेस। तो इसका उन्होंने कारण बहुत सुंदर बताया है। अब उसमें क्या काफी सारी टेक्निकलिटीज है उसमें, वी डोंट नो अबाउट दैट विल डिस्कस लेटर। पर जो इन्होंने अभी मिस्टर फर्शिद नमीरानियन ने कहा है, उसको मैं संक्षेप में कहती हूँ कि जैसे हम लोगों को पता है 1929 में बाबा सबको ईरान लेके गए, और जब वहां से बाबा निकलने को थे तो अब्दुल्ला पकरवान ने खुद जिद की कि मुझे वहीं पे रहना है, जबकि बाबा ने उनको ईरान में छोड़ा नहीं था। और जब उसने जिद की और बाबा ने उन्हें वहां रखा तो बाबा रोए थे, ये भी हमने देखा। बाबा हैड वेप्ट, और बाबा अपने केवल कार्य के लिए, फॉर हिज ओन वर्क ओनली, इफ इट इज सफर्ड ही हैज वेप्ट ट्वाइस, ओनली फॉर हिज वर्क, अपने कार्य के लिए ही वो रोए हैं। अब आगे उन्होंने अब्दुल्ला पकरवान को 3 आज्ञाएं दी थी, जो भी किताब में भी हमने पढ़ा था है कि शादी नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, पैसों को नहीं छूना है, और तीसरी आज्ञा इन्होंने क्या कही थी अभी भूल गई मैं। What was the third order? Not to touch woman or not to marry. It in the book, to keep silence. In the book, it is given to keep silence, not to touch money, and not to marry. तो शादी नहीं करना है, पैसों को छूना नहीं है, और मौन रखना है। अब इन्होंने ये संक्षेप में बहुत अच्छे से बताया कि उन्होंने अपना कारोबार संभाल नहीं पा रहे थे, तो उनको खुद को पैसा संभालना पड़ा, और इस प्रकार से पहली आज्ञा का भंग हो गया कि पैसों को उन्होंने छुआ। उनसे काम नहीं संभाला जाता था, तो उन्होंने खाना बनाने के लिए मेड रखी, सर्वेंट रखी, जो उनका खाना बनाती थी, और अंततः उन्होंने उसी से शादी करने का निर्णय किया। तो वो जो है, उन्होंने शादी की उससे, और फिर वो कहते हैं कि वहां से उन्होंने, अब्दुल्ला पकरवान ने ये अस्पेंदायर, क्योंकि वो जिसको हम लंगोटियार कह सकते हैं, कि स्कूल मेट्स थे, वो एक ही स्कूल में पढ़े थे, प्रेमाश्रम के दोनों बच्चे थे। तो उन्होंने उनके पास अपना दिल ओपन किया, अपना दिल खुला, और उन्होंने बताया कि जब मैंने शादी की तो फिर मैं अंधकार में वापस ढकेला गया, मेरे अनुभव आने बंद हो गए, और ना जाने अब मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे वापस उस अनुभव को हासिल करने के लिए। तो जब इन्होंने अपने शब्दों में इसको बहुत सुंदर वर्णन किया कि मानो कोई पिता है, अपनी संतान के लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़ के जाता है, और उसको आगाह कर देता है, सूचित करता है कि इसकी अच्छे से देखभाल करना, इसको संभाल के रखना, इसको ठीक से संभालना। लेकिन जिसे संपत्ति छोड़ी है वो बेटा उसकी कोई कदर नहीं करता है, और उसको अय्योशी में उड़ा देता है। तो वो जो पिता ने उसके लिए पूरी प्रॉपर्टी, पूरी जो भी अमानत रखी थी, जो भी उसके लिए संपत्ति रखी थी, वेल्थ, वो उड़ा देता है, खर्च करता है, अपने पिता के आज्ञा का पालन नहीं करता है। एक सिंबॉलिक उन्होंने इसको बताया है, प्रतीकात्मक रूप से, कि ठीक यही हुआ अब्दुल्ला पकरवान के बारे में। उनको तो बाबा उनके पिता जैसे थे। जैसे अभी कल के इंटरव्यू में, पिछले हफ्ते के और आज के इंटरव्यू में हम एस्पेंदारो इसलिए का हम देखेंगे कि वो बाबा को अपने पिता समान मानते थे।
तो इसी प्रकार से बाबा उनके लिए, छोटा बाबा तो वैसे भी ऑर्फन थे, अनाथ थे, तो उनके लिए बाबा एक पिता समान थे। तो बाबा ने उनको क्या संपत्ति दी थी? छठवीं भूमिका का अनुभव, 6 प्लेन एक्सपीरियंस, जितनी बहुत बड़ी जायदाद दी थी, लेकिन उसको छोटा बाबा संभल नहीं पाए, ऐसा इनका कहना है। हालांकि शहनाज की इंटरव्यू से ये पता चलता है कि वो बाबा की तीनों आज्ञाओं का उन्होंने उल्लंघन किया, लेकिन बाद में जो जीवन वो जिए तो बाबा की जो सीख है उसी प्रकार से जिए, ये हम किताब में देख रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जब बाबा की आज्ञा का उल्लंघन होता है, डिसोबे होता है, तो उसके परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। और ये दुख अब्दुल्ला पकरवान को था। उन्होंने स्वयं कहा है कि ना जाने अब मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे वापस उस अनुभव को हासिल करने के लिए। ये सब मिस्टर फशीद नमीरानियन ने अब यहाँ पर कहा है। अब मैं उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ इस बात पर। दूसरी एक बात है, कल 4 बजे यहाँ पर एडमिन हॉल MPR में उनका स्पीच है, तो शायद घंटा 2 घंटे का होगा, उसका लाइव स्ट्रीमिंग होगा, शायद रिकॉर्डिंग भी होगा, वो भी मैं आप लोगों को जैसे मिलेगी लिंक तो मैं आप लोगों को शेयर करेंगी। जरूर ज्वाइन होना सब लोग, जितने भी अभी मीटिंग में जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, हम लोगों की संधि है, अवसर है, तो उसका फायदा जरूर उठाना, उसको ज्वाइन जरूर करना। आपके अभी कुछ सवालात होंगे तो आप वो पूछ लीजिए, या तो फिर अगर वो राजी है तो उनको और आगे का कोई एस्पेंदायर वेस्ली का उनको बहुत नजदीकी काफी सहवास मिला, और एस्पेंदायर वेस्ली का जो प्रेम भरा पीसफुल चेहरा आप देखते हैं उनका उनके उनके बिहेवियर का उनके ऊपर अच्छा से प्रभाव पड़ा। जो बाबा कहते हैं कि आपका खुद का व्यवहार इस प्रकार के जीवन जीना है कि दूसरे लोग उससे प्रभावित हुए। तो the same way the way Espendayer Wesley lead has impressed, encouraged these people, right now. So मेरा ये सवाल, I have this question, Mr. Farshid. Baba says in Creation and Causes and everywhere that once heightened consciousness cannot come back. We also read in God Speaks that once gone on 6th plane will not come back. 5th plane, 6th plane will not go back. Baba also says in Creation and Causes that 6th plane person, even if he do not get, they are not reluctant to get God realization while they are in body, because they know after they drop physical body, automatically they are liberated and they get the God realization. They go to 7th plane. So can we assume? Yeah, you got the question, please, Jai Baba. The reason Chota Baba might not have that same situation is that because he lost his experiences of the 6th plane, he might have fallen back into a different level, maybe even a 2 or a 3rd plane. If you read Creation and its Causes, Baba explains about falling back on a spiritual journey. He talks about that. So I think he probably fell back from the 6th plane, and he has to come back again. So it doesn't really include him in that respect, that he was a 6th planer, and once he leaves his body, he becomes one with him because he lost that experience. But to me, Esfandiar Resoni is not coming back, because at the end of his life, he was on the 6th plane of consciousness. He would even have experiences of seeing and being one with Baba. And he, many times, that was revealed to me. Even I know of his experiences when he went from the 3rd plane of consciousness to the 5th plane of consciousness, because he related the story
that made that point that he was on the fifth plane later and then became the sixth plane consciousness. So he is not coming back. He's gone. Esfandia is gone. But Chota Baba has to come back because he lost. He lost the wealth. Mhm. So, thank you so much. Mr. Farshid has answered the question that he says that Chota Baba lost the consciousness. हिंदी वो कहते हैं कि छोटा बाबा ने अपना छठवीं भूमिका का अनुभव खो दिया है। देखो, अब ये खाली अनुमान लगाने की बात है। हम कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि उनको ईश्वर साक्षात्कार मिला ही या नहीं मिला, या उनको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते। ये सारे अनुमान है, पर जो उनका लॉजिक है वो सही है। वो कहते हैं, पर बाबा ये भी कहते हैं कि छठवीं भूमिका का इसका अनुभव तो बाबा ने टेम्पररी एनिमा दे के नीचे लाया था। खैर, लेकिन बाबा के आज्ञाओं का उन्होंने उल्लंघन किया। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। द पॉइंट इज ही डिसोबेड बाबा, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड सो इनका कहना है कि वो डेफिनेटली फिर से वापस आएंगे। लेकिन इनका कहना यह है कि एस्पेंदार वेस्ली जो है, जो आश्रम छोड़ते हुए तीसरी भूमिका में थे, तो इनका ये कहना है कि उन्होंने पांचवी भूमिका जाने का और छठवीं भूमिका तक आगे प्रगति मेहराश्रम में नहीं होते हुए सामान्य भौतिक जीवन जीते हुए, नॉर्मल लाइफ लीड करते हुए भी, लाइक बाबा सेज, बी इन द वर्ड बट डोंट बी ऑफ द वर्ड, तो इस प्रकार का जीवन एस्पेंदार वेस्ली ने जिया कि वो इस संसार में रहकर भी अपने कर्तव्य निभाते हुए भी उससे अलिप्त रहे, डिटैच रहे। तो उन्होंने पांचवी भूमिका भी हासिल की और छठवीं भूमिका में उनका जो अनुभव उन्होंने मिस्टर फर्शिद को बताया कि सब जगह वो बाबा को देख रहे हैं, बाबा को उन्होंने देखा है और पांचवी भूमिका के अनुभव उन्होंने उनको कहे हैं। सो ये ही इज वेरी श्योर, वो बहुत उनको खातरी है कि एस्पेंदायर वेस्ली डेफिनेटली उनको लिबरेशन मिला है, मुक्ति मिली है या ईश्वर साक्षात्कार मिला है, जो भी है। और ये किताब में भी मेंशन है कि उनको ये कहा गया था, उन्होंने अलोबा काका को शायद कहा था कि बाबा ने उनसे कहा था कि यू विल बी लिबरेटेड करके तुमको मुक्ति। तो ये कहते हैं कि एस्पेंदायर वेस्ली तो डेफिनेटली विल नॉट कम बैक, पर उनको छोटा बाबा के लिए इसके बारे में संदेह है। और किसी को कोई सवाल पूछने हैं? गांगड़े सर है, आई हैड सीन हिम। नाफड़े भव है। किसी को कोई सवालात है तो जरूर पूछ लेना, क्योंकि कल तो इनका भाषण होगा। हम यहाँ फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे तो पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। फिर we'll try to take him again on meeting, even if he goes back to USA. Baba willing, yeah. Huh? Baba willing. Baba willing. Yeah, no, I was telling that we can again take you online meeting, even though you go to USA through this Google Meet. But now if they want to ask anything, otherwise you can share, if you have some time, 3-5 minutes, you can share about Espendaar Wesley, because his way of living has affected, encouraged you quite a lot, and that's very important, I think. Yeah, we don't have a whole lot of time, but what I can add is that Samuel Vesali's, emphasize. He always emphasized the Baba to the extent possible. He said, do not waste your precious lifetime. Right? If you want to see him, you want to know, if you want to be, try to love him to the extent possible. He said, you have to work. And the work of love, he said, it's not easy, but it's not difficult either. For the seekers of the truth, the work of love is easy. One second.
वन सेक प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए. एक मिनिट थांबा. असं ॲब्रप्टली करू नका, त्याला काहीतरी पद्धत असते. मिस्टर गोपीकृष्णन और गोप वॉट एवर इज नेम इट इज, काइंडली म्यूट युअर सेल्फ प्लीज. देम ना. हॅलो. Person, yeah, his mic is on, but he is not listening. It starts with G. You please mute him. It starts with G. Gopal Charpe जी, please. तुम्ही तुमचा माइक बंद करा प्लीज. बंद करा. Thank you. Yes, please continue, sir. Sorry. Jai Baba. Yeah. So this is what his emphasis was. And the last words that he told me, and he actually told me to tell everybody who is interested in loving Meher Baba. He said, one should love Baba from the bottom of their heart. So this is what he said in Persian. Dardel Bader means in your heart, in your dead, with your dead, you should love Baba. Not in the mind. You should bring it into your heart. He said, when you bring it into the bottom of your heart, which we call it dead, I think in Hindi also call it dead, right? Yeah. So if you bring him into your dead, means you image him there and you love him there. The image is very important. His name is important, but his imaging him is even more important. He said, you image him within you, you close your eyes, you image him within you, and you love him. Try to love him to the power that you have. Whatever power you have, put it on that love. This is what he said. Put it on that love and try to love him to the extent possible. That way the path will open for you and you will experience the inner journey and you will go through this journey. So these were the last words that he gave me, and I'm giving you, and hopefully some of those who are really enthusiastic about loving Baba and loving God and try to progress on the inner path, they can use this and they can do that. Wonderful, wonderful. Thank you so much. This was so precious, so important. इतना महत्वपूर्ण उन्होंने आखिरी संदेश दिया है एस्पेंदायर वेस्ली से. वो कहते हैं, एस्पेंदायर वेस्ली कहते हैं, आप सच्चे दिल से अगर बाबा को प्रेम करना चाहते हैं तो अपने दिल से प्रेम करो, अपने मन से नहीं प्रेम करो. केवल सोचो खाली मत कि मुझे प्रेम करना है, कि मैं प्रेम करता हूं या करती हूँ. खाली विचारों में प्रेम मत रखो, उसको दिल से प्रेम करो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो कहते हैं कि कई सारे जन्म क्यों बर्बाद करने हैं, ये जन्म दाव पे लगा दो. जैसे मधुसूदन का गाना है ना, वो कोटे जन्मात एक अलावा डावा वर, कि ये लाइफ बर्बाद मत करो, ये जीवन बर्बाद मत करो. तो इसको आप उपयोग करो अच्छी तरह से और बाबा को दिल से चाहो, दिल से प्रेम करो. और बाबा की छवि को जिसको हम मानस पूजा कहते हैं, है ना, उस प्रकार से बाबा की छवि को अपनी आंखों के सामने लाओ और बाबा का हमेशा आंखें बंद करके चेहरा सामने लाने की कोशिश करो, जो कि बाबा ने इन मेहराश्रम प्रेमाश्रम बच्चों को सिखाया था. तो इस प्रकार से बाबा की कोई एक छवि या विभिन्न छवि, हम तो फोटो देखते रहते हैं, फिल्म देखते रहते हैं, तो बाबा की छवि को अपनी आंखों के सामने हमेशा लाके उसके ऊपर मेडिटेट करो, ध्यान करो. और इस प्रकार से तुम बाबा से दिल से प्रेम करो. खाली इंटेलेक्चुअली, माइंड से, मन से, विचार से खाली प्रेम मत करो, सही मायने में प्रेम करो. यह आखिरी संदेश उन्होंने बाबा को दिया है. एंड थैंक यू so much, Mr. Farshid Namiranian, for this wonderful share. You're going to go run to the Samadhi. Yeah. Yes, you are permitted. Yeah. Thank you. Giving us all his pure divine love. That's the main thing. Pure divine love. And hopefully some of you can join the live stream tomorrow because they said they're going to do that. So, Jai Baba.
to everybody. Thank you again. Jai Baba. Thank you on behalf of all the group and thank you so much. अवतार मेहर बाबा की जय. वी विल कंटिन्यू आवर, कृपा करके ग्रुप छोड़ना नहीं. पालवी जी आप छोड़ सकते ग्रुप और उनको छोड़ दो समाधि पर अपनी गाड़ी में. हम लोग हमारा रीडिंग जो है रेगुलर रीडिंग बाबा का द बॉयज किताब का बहुत सुंदर इंटरव्यू है, स्पंदर भेज लीजिएगा. तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना बुक रीडिंग को. एंड वी थैंक मिस्टर फर्शिद नमीरानी एंड वी थैंक बाबा for making this possible because he is the doer. Behind everything he is. So we thank Baba, we thank Mr. Farshid Namiranian and we will try to catch him again whenever it's possible. Wonderful message. He has ended its talk with directly from the Espandar Wesley Premashram boy. तो अभी आगे हम किताब का शुरू करते हैं. वी आर ऑन पेज नंबर 291. खोडियार नमीरानियन. एक्चुअली ये खोडियार, खोशरू एंड पिछले बार हमने जिनका देखा था ये सब इनके अंकल हैं, खोदादाद. खोदादाद नमीरानियन का हमने पिछले बार देखा था. ये खोडियार और खुशरू ईरानी के छोटे भाई है. वो उम्र में छोटे होने के कारण उनकी इच्छा होने के बावजूद वो मेरा आश्रम नहीं ज्वाइन कर पाए थे, लेकिन उन्होंने 2 बार बाबा का दर्शन किया था. ये खुदादाद, खोडियार एंड खोशरू ये नमीरानियन जी के, जो फर्शिद नमीरानियन जी के चाचा जी है सारे लोग. और इनका जो अद्भुत अनुभव, हम कई बार उसकी चर्चा कर चुके हैं कि फैक्ट्री में उनको बहुत मारा था वगैरह. तो ये जो अपने हृदय से उसका द्वेष निकालने के लिए जो जिस हद तक उन्होंने कोशिश की थी, ये अद्भुत अनुभव जो हमने देखा था, ये भी फर्शिद नमीरानियन जी के चाचा जी हैं. तो आगे पढ़ते हैं, हम आज का रीडिंग चालू करते हैं. पेज नंबर 291. खोडियार चूज नमीरानियन. तो यहाँ एक सुंदर तस्वीर दी है, आप लोग देख सकते हैं इसको. ये स्कूल डेज के इनके अंकल की तस्वीर है यहाँ पर. ये कई बार हमने देखी थी कि खोडियार जी है, बहुत प्यारी सी तस्वीर है. और ये फर्शिद नमीरानियन जिनसे अपने आपने बातचीत सुनी है, इनकी तस्वीर है राइट साइड में. और ये खोडियार जी हैं जो बचपन का अभी क्यूट सी तस्वीर देखी उनकी. ये बुढ़ापे की तस्वीर देख रहे हैं आप, ये इनकी छोटी उम्र की तस्वीर है. तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं. Although Khodyar Namiranian traveled to India from Iran with his twin brother Khushru, he was not a Prema Ashram boy and stayed in the Meher Ashram. तो खोडियार नमीरानियन भले ईरान से अपने जुड़वा भाई खुशरू के साथ भारत आए थे, मेहराश्रम आए, लेकिन वो प्रेमाश्रम के बच्चे नहीं थे और वो मेहराश्रम में ही रहे. Thanks to the 1975 research expedition of Irwin Luck and his team, we have a record of Khodyar's memories. तो इरविन लक ने जो 1975 में रिसर्च किया था, उसमें इन लोगों का इंटरव्यू लिया था और ये रिकॉर्डेड है खोडियार का इंटरव्यू. आपने शायद देखा होगा बी विद बाबा व्हाट्सएप ग्रुप में. अगर नहीं देखा है तो उसको हम करेंगे, वापस पोस्ट करेंगे, मुझे डाल देना, याद दिला देना. He recalls leaving Baba in January 1929 to return to Iran and Baba having kissed each of the 14 boys on the cheek before their departure. तो ये खोडियार जी को याद है कि 1929 में जब ये सारे बच्चों को, 14 बच्चों को बाबा ईरान छोड़े, तो उनको ईरान जाने के पहले बाबा ने स्वयं कहा था कि आप जाइए अभी अपने घर. तो वो सब बच्चों को जाने के पहले बाबा ने यहाँ पर चुंबन लिया था उनके चिक पर. खोडियार, ये जो बाबा ने चूम लिया था, उनको चुंबन दिया था, उनके चिक पर किस किया था, वो भी खोडियार जी को याद है, जो उन्होंने इरविन लक को 1975 के इंटरव्यू में बताया. खोडियार remembers that Baba emphasized both spiritual instruction and an academic curriculum for the boys. तो खोडियार जी अपनी
मेहराश्रम की बातें, परमाश्रम की बातें बताते हैं। So, with his twin brother, he was not a Premashram. Sorry, खोडियार जी मेहराश्रम में थे, तो उस वहाँ के वो जो उनकी यादें हैं वो बताते हैं। तो वहाँ वो कहते हैं कि बाबा का बिल्कुल एम्फसाइज था, बाबा उस पर भर देते थे कि इस पर बात पर अहमियत देते थे कि आध्यात्मिक सूचनाओं के साथ शैक्षणिक जो उनका कार्यक्रम है, अभ्यास है, उसको भी करने के लिए बाबा इस बात पर जोर देते थे। He talks about the academics that were instilled in the boys in the 1 year and 8 months they spent in India. 1 साल और 8 महीने में, 20 महीने के अंतराल में जो कुछ उनको शैक्षणिक शिक्षा वहां पर दी गई उस भारत में, उसके बारे में वो कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से सुनना। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा स्वयं मेहराश्रम में, कोई कॉल क्यों किया, मेरा लिंक गया। जय बाबा, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है ना? थैंक यू बाबा। तो वो उनको याद है। नहीं आ रही? जय बाबा, थैंक यू। तो ये जो खोडियार मेहराश्रम में पढ़ते थे, तो अपना जो बाबा का भर था वहां पर जोर देते थे बाबा कि आध्यात्मिक शिक्षा के साथ ही जो भौतिक शिक्षा है, शैक्षणिक पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको खत्म करने के लिए कितना बाबा महत्व देते थे और कितनी उच्च प्रकार की शिक्षा वहां पर दी जाती थी, ये हमने वहां पर क्रिएशन एंड कॉलेज में खूब डिटेल में पढ़ा है। वो स्वयं अब मेहराश्रम का बच्चा के मुख से हम सुन रहे हैं। अब वो बच्चा नहीं है। जब 1975 में इन्होंने इंटरव्यू दिया तो उसमें ये कह रहे हैं, बता रहे हैं, इन दैट पीरियड I studied the equivalent of 4 years of English school and 6 years of Persian school. केवल 1 साल और 8 महीने में छुट्टियां जाके भी, इसमें छुट्टियां भी थी, कई बार दी जाती थी, 4 दिन 8 दिन छुट्टी गर्मी की है, वो सब जाकर भी 1 साल और 8 महीने में हमने जो सीखा वो कहते हैं वो इंग्लिश स्कूल की 4 वर्षों की पढ़ाई जैसा है और पर्शियन स्कूल की 6 साल की पढ़ाई जैसा है। जितना बाहर का स्कूल 6 साल में पढ़ाएगा भौतिक शिक्षा अभ्यासक्रम, वो बाबा ने उनको 1 साल 8 महीने में शिक्षा दी। जो बाहर की दुनिया में इंग्लिश स्कूल में 4 सालों में सिखाया जाएगा, 4 स्टैंडर्ड्स में सिखाया जाएगा, वो उनको वहां पर 1 साल और 8 महीने में पूरा सिखाया गया था। Isn't it wonderful? और हमने ये भी तक देखा है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से उनको इतनी तारीफ मिली थी कि ऐसा स्कूल हमने कहीं देखा नहीं है। इस प्रकार का उनको मिला था, द बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिला था। After his return from India to Persia, Iran, Khodia felt Baba's presence often. तो यहाँ भारत छोड़ के जब वो ईरान गए खोडिया, तो उनको बाबा की मौजूदगी हमेशा महसूस होती थी। कितना अद्भुत है। And was always able to bring comfort into his daily life by remembering बाबा। अपने दैनंदिन जीवन में भी सुलास पाने के लिए, कंफर्ट पाने के लिए, आराम लाने के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए वो हमेशा बाबा को याद करते थे। और वो कंफर्ट उनको दैनंदिन जीवन में बाबा के याद के कारण मिला। बाबा का प्रेजेंस भी उनको महसूस होता था, फील होता था। When just 13 years old, he went to Bombay to work and was fortunate enough to meet Baba there. जब वो केवल 13 साल के थे
तो फिर बम्बई आने का उनको मौका मिला और वहां पर वो काम करते थे। वहां पर बाबा से फिर से मुलाकात करने का उनको मौका मिला। ये भी एक उनका सौभाग्य था जो बाकी लोगों के हिसाब में नहीं था। आगे वो कहते खोडियार, One day I saw Baba with two others, one of whom was my teacher from school. वो कहते हैं वो काम पे जाते थे, 13 साल के थे लेकिन बम्बई में काम करते थे। वो कहते कि एक दिन अचानक मुझे बाबा दिखाई दिए। बाबा के साथ में दो व्यक्ति थे। उन दोनों में से एक मेरे स्कूल के मेहराश्रम के टीचर थे और जाहिर है मेहराश्रम स्कूल के टीचर मतलब के खुशरू अफसेरी होंगे। They gestured for me to approach. उन्होंने इनको देखा तो उन्होंने बाबा के पास उनको बुला लिया। The only thing Baba said to me was that I should think of him constantly. केवल बाबा ने बुला लिया उसको अपने पास। जब बॉम्बे में उनकी मुलाकात एक दूसरे से हुई और बाबा ने उनको केवल एक ही बात बोली कि सतत मेरे बारे में विचार करो। Constantly think of him. हमेशा बाबा के बारे में सोचना। And doing this has been a great help in my external and internal life. खोडियार कहते हैं इस प्रकार से सतत बाबा का स्मरण करने से, बाबा के बारे में सोचने से मेरा जो भौतिक जीवन भी आसान हुआ और मेरा अंतर्गत जो इनवर्ड जर्नी है, इन्वोल्यूशन है, अंतर्वर्ती प्रवास है, अंतर्गत रीत्या जो बाबा से वो कनेक्टेड थे, संबंध था, वो जो उनका इनर लाइफ है वो भी उसके कारण बहुत आसान हुआ। खोडिया मैरिड एंड रेज्ड 6 चिल्ड्रन। खोडिया ने भी शादी की, उनके 6 बच्चे हुए। ही पास्ड अवे ऑन नवंबर 12, 1987। 12 नवंबर 1987 में उनका देहांत हो गया। Esmondar gave his first public talk almost immediately while still on his 1990 Indian visit. तो एस्पेंदार वेस्ली को अपनी इंटरव्यू देने के लिए, भाषण देने के लिए आग्रह किया। वो अभी जिनका आपने बात सुनी, फर्शिद नमीरानियन, he was the person because of whom we came to know all these things. उनके कारण हमें ये सभी प्रेमाश्रम मेहराश्रम बच्चों के बारे में सुनना, पढ़ना, वीडियोस देखना पॉसिबल हो गया। क्योंकि फर्शिद नमीरानियन जो है उन्होंने आग्रह किया इन लोगों को, इन लोगों से मिले, बातें की, वो जो बोलते थे उसको भाषांतरित करते गए, ट्रांसलेट करते गए, पूरी डेडिकेटेड लाइफ। तो एस्पेंदार वेस्ली जब 1990 में भारत के भेंट में भारत के दौरे में थे, उसी समय तुरंत जब वो उनके उसके बाद में जो पब्लिक टॉक शुरू हो गए, सबके लिए वो भाषण देना शुरू किए, और जब वो भारत में थे तभी उसकी शुरुआत हुई 1990 में। Farhad Shafa served as interpreter for Esfandar, and the DVD of this talk, titled Premashram Memories, Esfandar Vesely, would begin 14 years of Esfandar's public appearances. तो फहद शफा जो है दूसरे एक व्यक्ति, इनके वीडियो आपने देखे हैं, हम कभी प्रयास करेंगे उनको भी ऑनलाइन लेने का। वो भी अभी है, शायद वो ईरान में है, मेहर सेपा में अक्सर आते हैं। तो इन्होंने एस्फंदायर के लिए दुभाषी का काम किया और एक उन्होंने डीवीडी बनाई एस्फंदायर वेस्ली के भाषणों की, और उसका नाम है प्रेमाश्रम मेमोरीज, प्रेमाश्रम की यादें, एस्फंदायर वेस्ली। ये 14 साल ये चालू रहा, 14 साल तक इस प्रकार का भाषण वो देते रहे। 14 years of Espendar's public appearances. लोग उनसे सवाल पूछते थे, वो जवाब भी देते थे। और कई सारे वीडियो मुझे उम्मीद है कि बी विद बाबा में आपने देखे होंगे, सुने होंगे। अगर अब तक नहीं देखे तो अब देखना शुरू करें। अभी टीवी भी बंद करो, बाकी कुछ झमेल में पड़ो मत, इसके लिए समय कम पड़ रहा है ना। Later in 1991, Espandar spoke at the Los Angeles Sevas in Los Angeles
the Sehwas in Port Townsend, Washington State, the Sufi Center in San Francisco, and Meher Spiritual Center in Myrtle Beach, South Carolina. उसके पश्चात 1991 में एस्पेंदायर लॉस एंजलिस सहवास में भी उन्होंने भाषण दिया। पोर्ट टाउनसेंड एंड वाशिंगटन स्टेट में जो है वहाँ पर सूफी सेंटर में भी उन्होंने भाषण दिया। सैन फ्रांसिस्को में मेहर स्पिरिचुअल सेंटर जो है मर्टल बीच साउथ कैरोलिना, वहाँ पर भी उन्होंने भाषण दिया। Although Espendaer carried not one iota of vanity within him, Farshid recalls him saying in India, perhaps with some hope on how these talks would unfold, he looked at me and said that it was possible for one's soul to bring a person into Baba's company. इनके मैसेजेस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उस प्रकार का जीवन जिए जैसे कि अभी हमने देखा। फर्शीद नमीरानी ने जिस प्रकार से अपना भाषण कंक्लूड किया, उनका एक अत्यंत महत्वपूर्ण मैसेज दिया कि यदि तुम लोग सही में सीरियस हो बाबा से प्रेम करने के लिए, अपने मन के खाली सोचो मत, खाली मन करता है हाँ मैं बाबा से प्रेम, ऐसा नहीं, हृदय से प्रेम करो। उनकी छवि को अपने आंखों के सामने याद करो, अपने मन के सामने हमेशा लाओ और उस पर कंसंट्रेट करो। ये जन्म वेस्ट मत करो। ये जीवन जो है लाइफ टाइम, इसको वेस्ट, हम उनको प्रेम नहीं करेंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे, उनके बारे में नहीं सोचेंगे, उनको याद नहीं करेंगे, तो हमारा ये जीवन, मौलिक जीवन हम वेस्ट कर गए, निरुपयोगी हो गया। उसको वास्तव में उपयोग में लाना है तो बाबा से प्रेम कर, मन से नहीं, खाली सोच से नहीं, दिल से करो, दिमाग से नहीं। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगी। तो ये फर्शीद कहते हैं कि सम होप ऑन हाउ दिस टॉक वुड अनफोल्ड, कि इन ये जो भाषण है एस्पेंदायर वेस्ली के जरूर सुनना। वो कहते हैं कि इन भाषणों के माध्यम से कभी एक भी आत्मा अगर बाबा की कंपनी में आई नहीं तो भी बहुत है। It was possible for one's soul to bring a person into Baba's company. तो ये एस्पेंदायर वेस्ली फर्शीद नमीरानियन के को देखकर उनको कहते हैं कि किसी आत्मा को ये बिल्कुल संभव है कि कम से कम एक व्यक्ति को बाबा की कंपनी में लाए, बाबा के सहवास में लाए। दिस इज ऑल्सो अनदर ब्यूटीफुल इम्पॉर्टेंट मैसेज। अब नया चैप्टर शुरू होता है 13 नंबर का, पेज नंबर 293। एस्पेंदायर शेयर्स लव फॉर बाबा ग्लोबली, बाबा का प्रेम पूरे जगत में सबके साथ उन्होंने कैसे बांटा, कैसा शेयर किया। प्रेमाश्रम के दिनों की बातें की, स्वयं के बारे में बातें की, और ये सब के दौरान उनको इतना पता था अब्दुल्ला का, फिर भी उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी उन्होंने कभी की नहीं। जो बातें हमें अभी मालूम पड़ी वो उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि किताब में जो नहीं आया है और ऐसी कोई बातें हैं वो हमको बताइए, तो उन्होंने बताया है। कल और भी वो बातें करेंगे, तो उसके पहले अब आज का ये नया चैप्टर शुरू करते हैं। द अनफोल्डमेंट ऑफ एस्पेंदायर्स लाइफ into having a more direct bearing on Baba followers in India and the United States was not a simple journey. तो एस्पेंदायर ने जो अपना जीवन के बारे में सबको बताया, भारत में, विदेश में, ये सब उनके लिए ये यात्रा आसान नहीं थी। और सही बात है, हम औरों की बातें बताए, बाबा की बातें बताए, बाबा के मैसेज कहे, ये बहुत आसान होता है, ये संभव होता है। खुद के स्वयं के अनुभव बताना बहुत मुश्किल होता है। Interpreters were needed to translate from Farsi and convey the deep relationship with Baba that came during his 18-month stay in India in 1927-29. तो इसमें और कई सारी दिक्कतें थी, अड़चने थी, उसको रिकॉर्ड करना, उसको प्रोवाइड करना। साथ ही में एस्पेंदायर वेस्ली हमेशा पर्शियन में बोला करते थे, तो उनको जो पर्शियन में बोल रहे हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए, दुभाषा चाहिए। इस प्रकार से
1927 से 29 तक जो 18 महीने, यहाँ 18 महीने लिखा है, वहाँ 20 महीना दिया है, वॉट एवर, 18 मंथ्स जो सहवास उनका बाबा के साथ में था, वो अद्भुत था, वो विलोभनीय था, वो प्रेशियस था, मौलिक था। सबके हिस्से में वो नहीं आता है। जिसके हिस्से में आया उसको सुनना एक बड़ी बात है। आप लोग इसका महत्व समझिए। यदि अगर मेरे पिताजी को बाबा का सहवास मिला होगा तो भी लगातार 18 महीने बाबा स्वयं अपने हाथ से आटा पीस रहे, उसी की रोटी स्वयं बना के आपको हाथों से खिला रहे, आपके कपड़े धो रहे, आप ठीक से सोए कि नहीं, आप सोते हैं तो आपको फिर आपके ऊपर जो है धुलेंगे है वो ओढ़ रहे हैं, आपको नहला रहे हैं, आपको सहला रहे हैं। ये सबके हिस्से में नहीं है। तो जिसके हिस्से में ये आया है वो स्वयं वो कहता है तो हमको सुनना हमारे लिए एक खजाना है वो। The interpretation duties at Espenda's talks between 1990 and 2003 were shared by Farshid Namiranian and Mehernosh Lokalantari, MC Fasson. The following talks have been edited. तो 1990 से लेके 2003 तक इतने सालों तक उन्होंने लोगों को प्रेम बांटा, बाबा की बातें शेयर की, बिना थके, बिना कोई प्राइड, बिना कोई अहम, बिना कोई नोक छोक नखरे, कुछ भी नहीं, विदाउट एनी सेल्फ इम्पोर्टेंस, कुछ भी नहीं था। ये जो उन्होंने बातें शेयर की एस्पेंदार वेस्ली ने, इसको भाषांतरित करने का खास करके कर्तव्य जो है वो दो लोगों ने शेयर किया। एक फरशीद नमीरानियन, जिनको अभी आपने सुनने का आपको भी सौभाग्य मिला, और दूसरे है MC फरसन मेहरनोश, आप लोग जानते हैं, लोक लंतारी, तो जो मेहर सेपा में अक्सर आती है, आप देखना मेहर सेपा कभी ज्वाइन करना। तो इन दोनों ने और फरहद शफा ने भी इनको किया है। तो इन्होंने जो किए उनके भाषांतर, उनकी जो भाषण है, स्पीच है एस्पेंदार वेस्ली को, जिसको इन लोगों ने भाषांतरित किया, उनमें से नीचे एडिट करके कुछ भाषण नीचे दिए हैं। अब ये भाषण हम शुरू करेंगे, लेकिन इसके कुछ भाषण जो है इसके वीडियोस उपलब्ध है। बी विथ बाबा में मैंने करीब सारे जितने अवेलेबल है एस्पेंदार वेस्ली के वीडियो डाले हैं। इसके अलावा कोई वीडियो आपको किसी को मिलता है तो जरूर शेयर करना, मुझे दे ना, वो मैं ग्रुप में डालूंगी। ग्रुप इसलिए बंद रखा है चैट के लिए कि फिर लोग कुछ भी डालना शुरू करते हैं, फिर फोकस नहीं रहता, जो महत्वपूर्ण बात है वो खो जाती है बाकी मैसेजों की भीड़ में। तो एक दो की वजह से सारे ग्रुप को सफर होना पड़ता है, ये एक है, लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं। ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि जो तकलीफ देता है केवल उसको ग्रुप चैट के लिए बंद करने, लेकिन वो है नहीं अभी। आज प्रेयर किसको देंगे और आरती किसको देंगे वो देख के फिर आगे बात करती हूँ। 2 मिनट, आई एम सो सॉरी। ठीक है, अभी हमेशा मैं ऊपर देख के फिर इन्हों को बोल देती हूँ। ओके ओके, श्वेतांबरी को आरती देंगे क्योंकि प्रेयर वो कोई दूसरी प्रेयर बोलती है, श्वेतांबरी आरती करेगी। जी श्वेतांबरी, आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आप प्रेयर आरती करेंगे और प्रेयर में मधुकर डोंगरे जी को देती हूँ प्रेयर आज की। मधुकर भाऊ, डोंगरे भाऊ प्रेयर करेंगे और श्वेतांबरी आरती करेंगे। अभी 1 मिनट है, तो डोंगरे भाऊ आप सुन रहे हैं, आप प्रेयर करेंगे। यस, थैंक यू, थैंक यू, बहुत प्रॉम्प्ट है और बहुत सुंदर प्रेयर करते हैं। और श्वेतांबरी आज उनका बर्थडे है, उनको हैप्पी बर्थडे पूरी ग्रुप की तरफ से। थैंक यू मीना ताई बताने के लिए। और श्वेतांबरी आरती करेंगी। अगर वो कठाड़े काका के घर में है तो सब मिलके भी आरती कर सकते हैं। यदि आप लोगों को, मुझे लगता है यहाँ रुकना भी पड़ेगा, 1 मिनट ही बाकी है। एक जो स्पीच है सुंदर है आगे, इसको कभी भी आप लोगों में से कोई भी, मेरी इच्छा है कि इसको खोइए मत। ये आपको किताब मुझे नहीं मालूम इतना आसानी से उपलब्ध नहीं है,
और अगर आप लेते हैं तो बात अच्छी है, दूसरों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि इसको ग्रुप में हम डालते नहीं है इसके पेजेस, तो इसको कभी मिस नहीं करना। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। शुरू करना प्रेयर। जय बाबा।